بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم لوگوں نے ایک بار ریکال کرتے ہیں کون کون سے کہانی کون کون سے پروفٹ دیکھ لیا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ہم نے دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام، پھر ہم نے دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ہم نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام۔ فائنلی اس لاسٹ پلے لسٹ کی لاسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی اور آئے تھے جو خاتم النبی تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی کہانی رفلی ہم نے آلریڈی اسلام والی پلے لسٹ میں دیکھ لی ہے، تو اتنا میں پھر ڈیٹیل میں بنا نہیں رہا ہوں، بلکہ ڈیٹیل میں ہم سیرت کے اوپر ایک پلے لسٹ الگ سے بنائیں گے ان کے اوپر، لیکن ابھی اس ویڈیو میں اس کو ہم کور نہیں کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی آج ہم دیکھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے جو اللہ کے حکم سے بنا والد کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی والد نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو، ان کی والدہ کا نام تھا حضرت مریم علیہ السلام، جو ایک کنواری لڑکی تھی۔ کنواری لڑکی نے ان کو پیدا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے جو اللہ کے حکم سے بنا والد کے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا ہوئے تھے، جو ایک کنواری لڑکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پیدائش کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیلسٹائن میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی اللہ تعالیٰ قرآن میں کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب۔ عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا، ان کے والدہ یعنی کہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، ہر ذمہ داری سے چھڑا کر، بس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ عمران علیہ السلام کی بیوی نے، عمران علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، ان کے نانا کا نام تھا، وہ نبی نہیں تھے۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، ان کے وائف نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانی نے کہا تھا
जो बच्चा मेरे पेट में है मैं उसको तेरी ही नजर करती हूँ हर जिम्मेदारी से, यानी कि तेरी राह में मैं उसको बिछा दूंगी, तेरी राह में छोड़ दूंगी, मैं उसको अपने दुनिया के किसी काम में नहीं लूंगी, तेरी राह में तेरे दिन के काम के लिए लगा दूंगी। इस तरह से उन्होंने मन्नत मांगी। नजर करती हूँ हर जिम्मेदारी से छिड़ा कर, बस तू उसको मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इस तरह से उन्होंने नजर मांगी, मन्नत मांगी। तो जब उसे वाज़े हमल हुआ तो उसने कहा, ए मेरे रब, ये तो मैं एक लड़की जन गई हूँ। तो लेकिन जब हमल पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो एक लड़की पैदा हुई, मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लड़की हो गई वो। अब लड़के को जिस तरह से छोड़ दे रहे थे दीन की राह में, उस तरह से ऑब्वियसली लड़की को तो छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता था। लड़की जन गई है और अल्लाह बेहतर जानता था कि उसने क्या जना है, और नहीं होगा कोई बेटा उस बेटी जैसा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कोई भी बेटा अगर पैदा हो जाता तो इस बेटी जैसा नहीं होता था, कोई बेटा नहीं होगा उस बेटी जैसा। वो बेटी बहुत पाक थी, मरियम अलैहिस्सलाम। और मैंने उसका नाम मरियम रखा है। और ए परवरदिगार, मैं उसको और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम मुश्किल था काम, क्योंकि लड़की को तो इस तरह से दिन के लिए छोड़ देने को कोई भी पेरेंट्स सोचते हैं, लड़के के मुकाबले में कोई भी सोचते हैं, लेकिन मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने के वालिदा ने किसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में निकाल दिया दिन के काम के लिए। तो कबूल फरमा लिया उसको उसके रब ने बड़ी ही उम्दगी के साथ, और उसको परवान चढ़ाया बहुत आला तरीके पर, और उसको जकरिया की किफालत में दे दिया। तो जब उन्होंने छोड़ दिया तो अल्लाह की राह में, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दिया उनको, तो वहां पर जकरिया अलैहि सलाम की नजर में मरियम अलैहि सलाम पड़े पड़े। जकरिया अलैहि सलाम एक नबी थे जो ईसा अलैहि सलाम से पहले आए थे। हमने लास्ट वीडियो में यूनुस अलैहि सलाम के बारे में देखा, उनके बाद और ईसा अलैहि सलाम से पहले आए थे। लेकिन उनके कहानी का डिटेल्स हमको ज्यादा तो मिलता नहीं है। उनके जकरिया अलैहि सलाम और यहया अलैहि सलाम दोनों के दो नबी और थे। वो दोनों की कुछ कुछ बातें आती है, वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उनके लिए अलग से वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ, क्योंकि ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बस यही दो चार बातें मिलती है कि जकरिया अलैहि सलाम ने उनको पाला, बस इतना ही है। तो इसी वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। और उसको जकरिया की किफालत में दे दिया। जब कभी भी जकरिया उनके पास जाते थे महराब में, तो उनके पास रिस्क पाते, वो पूछते। तो कभी भी जकरिया अलैहि सलाम मरियम अलैहि सलाम के घर जाते, उनके पास जाते, तो उनके पास रिस्क होता, खाना होता। तो मरियम अलैहि सलाम से वो पूछते, ए मरियम, तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिलती है? वो कहती थी कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, यकीनन अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब अता करता है। अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला देता मेरे को, अल्लाह ताला जिसको देना है बेहिसाब देता उन्हें, बल्कि मरियम अलैहि सलाम इस तरह से कहते, मरियम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला सीधा खाना दे देते थे, रिस्क अता करते थे। हजरत जकरिया को ये मुशाहिदा हुआ तो इन्होंने उसी वक्त अपने परवरदिगार से एक दुआ की। इन्होंने कहा, ए मेरे रब, तू मुझे भी अपनी जिनाब से कोई पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे, यकीनन तू दुआ का सुनने वाला है। तो जब जकरिया अलैहि सलाम को ये मालूम हुआ तो उन्होंने क्या किया, जकरिया अलैहि सलाम ने औलाद के लिए दुआ मांगी अल्लाह ताला से। तो फरिश्तों ने इन्हें नदा दी, जबकि वो अपने हिजरे में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे, कि अल्लाह ताला तुम्हें बशारत देता है यहिया की। यहिया अलैहि सलाम जकरिया अलैहि सलाम के बेटे थे, ये भी एक नबी थे। यहिया की जो तस्दीक करेगा अल्लाह की तरफ से एक कलमे की, अल्लाह की तरफ से कलमे की, आने के ईसा अलैहि सलाम की तस्दीक करेगा। क्योंकि यहिया अलैहि सलाम के बाद ये दो नबी आए थे, ईसा अलैहि सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो या तो ईसा अलैहि सलाम के बारे में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों में से किसी के भी बारे में हो सकता है, मगर मेजरली कहते हैं कि ये ईसा अलैहि सलाम के बारे में है। अल्लाह ताला तुम्हें बशारत देता है यहिया की, जो तस्दीक करेगा अल्लाह की तरफ से एक कलमे की, और सरदार होगा, और तजर्रुद की जिंदगी गुजारेगा, और नबी होगा सालिहीन में से। कहा परवरदिगार, तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो जाएगा, जबकि मैं इंतहाई बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ रही है।
अल्लाह ने फरमाया, उसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। तो जब जकरिया अलैहि सलाम ने कहा कि मेरे को कैसा बेटा होता, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ अब, और मेरी बीवी भी बांझ है, तो कैसे बेटा होगा? बोले तो अल्लाह जिसको चाहता है देता है। इन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरे इत्मीनान के लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि अब तुम 3 दिन तक लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे सिवाय इशारे किनाए के, और अपने रब को कसरत से याद करते रहो और तस्बीह किया करो शाम के वक्त भी और सुबह के वक्त भी, कि तुम अब 3 दिन तक किसी से बात मत करो, बल्कि जकरिया अलैहिस्सलाम को हुक्म आया 3 दिन तक बात न को करो किसी से, इशारे में बात करो सिर्फ, और अल्लाह की बंदगी करो। हाँ, और याद करो जबकि कहा फरिश्तों ने, ए मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम से फरिश्ते मुखातिब होकर कह रहे, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खूब पाक कर दिया है, और तुम्हें तमाम जहां की खवातीन पर तरजीह दी है। मरियम अलैहिस्सलाम को क्या किया? अल्लाह ताला ने उस टाइम पर जितने भी औरतें थे, जितने भी खवातीन थी, तमाम जहां की तमाम दुनिया की खवातीन को क्या लीडर बना दिया। ए मरियम, अपने रब की फर्माबरदारी करती रहो और सजदा करती रहो और रुकू करती रहो, रुकू करने वालों के साथ। ये गैब की खबरों में से है जो ए मोहम्मद हम आपको वही कर रहे हैं, और आप तो उनके पास मौजूद नहीं थे जबकि वो अपने कलम फेंक रहे थे। जब ये सब चीजें हो रही थी आप मौजूद नहीं थे, ये गैब की खबरों में से है, हम आपको बता रहे हैं, आपको पता नहीं था पहले से, कि उनमें से कौन मरियम का कफील होगा, और ना आप उस वक्त उनके पास मौजूद थे जबकि वो आपस में झगड़ रहे थे। ये सब होते वक्त आप मौजूद नहीं थे वहां पर, हम आपको वही कर रहे हैं। याद करो जबकि फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें बशारत दे रहा है अपनी तरफ से एक कलमे की। ये कलमा की यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कलमे की, इसीलिए इस बुनियाद पर कहा जाता है कि वो जो कलमा की बशारत यही अलैहिस्सलाम दी वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में था। जब याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें बशारत दे रहा है अपनी तरफ से एक कलमे की, उसका नाम होगा अल मसीह ईसा इब्ने मरियम। ईसा इब्ने मरियम, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम को वालिद, सॉरी, ईसा अलैहिस्सलाम को वालिद नहीं थे। मरियम ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए थे, तो उनका सरनेम कोई वालिद की तरफ नहीं था, इसलिए बिन मतलब हमने देखा है जो वालिद का नाम रहता है, लेकिन वालिद ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं थे, तो उनके लिए वालदा का नाम लगाया जाता है, ईसा इब्ने मरियम। उसका नाम होगा ईसा इब्ने मरियम, मर्तबे वाला होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह की बहुत ही मुकर्रबीन बारगाह में से होगा, और वो लोगों से गुफ्तगू करेगा गोद में भी और पूरी उम्र का होकर भी। जब वो गोद में होगा जब से ही क्या करेगा, लोगों से बात करना शुरू करेगा, और जब उम्र का होगा जब भी बात करके अल्लाह की तरफ बुलाएगा सबको, उम्र का होकर भी, और वो हमारे नेकोकार बंदों में से होगा। बोली, ए अल्लाह, मेरे औलाद कैसे हो जाएगा जबकि मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। फरमाया, उसी तरह अल्लाह ताला तख्लीक फरमाता है जो कुछ चाहता है। वो तो जब किसी अमर का फैसला कर लेता है तो उसे कहता है हो जा, वो हो जाता है। जब तो अल्लाह ताला जब बस कहता है हो जा, वो हो जाता है, जिसको भी बनाना है। और अल्लाह ताला उसको सिखाएगा किताब और हिकमत भी, और तौरेत और इंजील भी। तौरेत अब तक हम लोगों ने देख लिया, जो किताबें तो बहुत सारी थी, 4 किताबों का नाम से था, वो सारे हमने देख लिया। तौरत सबसे पहले मूसा अलैहि सलाम पर दाऊद हुई, नाजिल हुई थी। जबूर हजरत दाऊद अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी। अब इंजिल का ये जो जिक्र है, ये हजरत ईसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी। कुरान मजीद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। वो हम उनकी सीरत की एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे। और अल्लाह ताला उसको सिखाएगा किताब और हिकमत भी, और तौरेत और इंजील भी, और उसको रसूल बनाकर भेजेगा बनी इसराइल की तरफ, कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की मानिंद सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसी में फूंक मारता हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था, कि
ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, मट्टी से एक शक्ल बनाते थे परिंदे की और फूंक मारते थे, तो परिंदा क्या असली परिंदा होकर हवा में उड़ने लगता था। परिंदे की मानिंद सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ तो बन जाता है उड़ता हुआ परिंदा अल्लाह के हुक्म से। और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधे को भी और कोढ़ी को भी। अंधों को क्या करता हूँ, शिफा देता हूँ मैं। और मैं मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये सब काम किससे होते थे? अल्लाह के हुक्म से होते थे। मौजिजा उसको कहते हैं, मौजिजा यानी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम जैसे इशारा करते थे वो हो जाता था, लेकिन हुक्म अल्लाह का आता था, अल्लाह के हुक्म से होता था वो काम, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं करते थे। और मैं मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में जखेरा करके रखते हो। यकीनन उन तमाम चीजों में तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और मैं तस्दीक करते हुए आया हूँ उसकी जो मेरे सामने मौजूद है तौरात में से। जो तौरात तुम्हारे पास किताब है ऑलरेडी, उसकी तस्दीक मैं करता हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत लेके आए थे इंजिल के जरिए, लेकिन तौरात की खिलाफ नहीं थे, तौरात की तस्दीक करते हुए इंजिल की शरीयत लेकर आए थे, जो सामने मौजूद है तौरात में से। और ताकि मैं हलाल ठहरा दूं तुम पर उनमें से बास चीजें जो तुम पर हराम कर दी गई है। और मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ निशानी तुम्हारी रब की तरफ से, बस अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और मेरी इताअत करो। यकीनन अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, बस उसी की बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। बस जब ईसा ने उनकी तरफ से कुफ्र को भांप लिया तो इन्होंने पुकार लगाई कि कौन है मेरा मददगार अल्लाह की राह में। कहा हवारियों ने कि हम हैं अल्लाह के मददगार, हम ईमान लाए अल्लाह पर और आप भी गवाह रहिएगा कि हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। अल्लाह के फर्माबरदार हैं। ऐ रब हमारे, हम ईमान ले आए उस पर जो तूने नाजिल फरमाया है, और हम इत्बा कर रहे हैं तेरे रसूल का, बस तू हमारा नाम गवाहों में लिख ले। अब इन्होंने भी चालें चली और अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। याद करो जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, अब मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ। तो जब अल्लाह ताला को ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया अल्लाह ताला ने, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त नहीं आया था, लेकिन जब लोग उनको कत्ल करने की साजिश कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ जिंदा उठा लिया था। याद करो जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, अब मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ और तुम्हें पाक करने वाला हूँ उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, और गालिब करने वाला हूँ उन लोगों को जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क़यामत तक, उन लोगों पर जो तुम्हारा इनकार कर रहे हैं। फिर मेरी तरफ ही तुम सबका लौटना होगा और मैं फैसला कर दूंगा तुम्हारे माबिन इन बातों में जिनमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। तो सब क्या करेंगे, अल्लाह की तरफ लौटना है सबको। तो वो लोग जो कुफ्र की रोश इख्तियार करेंगे, मैं इन्हें आजाब दूंगा, बहुत सख्त आजाब देने में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और नहीं होंगे इनके लिए कोई मददगार। और ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे तो वो उनको उनका पूरा अजर देगा, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ये हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं आयत इलाही और पर हुकूमत याद दहानी में से। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। उसको मिट्टी से बनाकर फिर कहा हो जा तो वो हो गया। आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया था मिट्टी से बनाकर, वो अल्लाह ताला ने कहा था कि हो जा, जान फूंक दी थी, हो जा तो वो हो गए, बन आ गई दुनिया में। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल भी है, बिना वालिद के पैदा हुए।
یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے، تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا آپ۔ اس کے آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم، آیت نمبر 60۔ ہم، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم کا، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی گوشے میں جا کر بیٹھی، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا۔ پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، تو اس نے صورت اختیار کی اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، اگر تم کوئی متقی شخص ہو تو۔ اس نے کہا، میں تو آپ کے رب کا فرزدادہ ہوں، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بچلن عورت ہوں۔ اس نے کہا، ایسے ہی ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے نشانی بنانے کے لیے، بنا والد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو، اور رحمت اپنی طرف سے اور ایک طے شدہ امر ہے۔ تو اسے اس کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ پھر لے آیا اسے درزا ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز چکی ہوتی۔ تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلائیں، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی، بس آپ کھائیے اور پیجیے اور آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ اور اگر کسی آپ دیکھیں کسی آدمی کو، تو اس سے کہہ دے کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کے لہجہ میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ تو اگر کوئی آپ کو پوچھے اس سے متعلق، تو بس کہہ دیجئے کہ میں روزے میں ہوں، میں منت مانگی ہے، اشاروں میں کہہ دیجئے کہ میں بات نہیں کر سکتی۔ پھر وہ لے آئی اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، یقیناً تم ایک طوفان گھڑ لائی ہو۔ obviously ایک کنواری لڑکی کے گود میں بچہ دیکھ کر لوگ باتیں تو بنانے لگے، اور کہا کہ تم ایک طوفان گھڑ لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہارا والدہ بدکار تھی۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسی بات کریں جو گود میں پڑا بچہ ہے۔ اس نے کہا، بچے نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، گود میں سے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے بات کریں گے۔ اس بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے بابرکت بنا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے تنخو بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے شایع شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے،
वो पाक है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसे कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। और यकीनन अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, तो तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। इसके आगे फर्दर अल्लाह फरमाते हैं सूरह मायदा में आयत नंबर 110। हम्म, 110। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, जब कहेगा अल्लाह ताला, यानी कि कहेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला, ए ईसा इब्ने मरियम, जरा मेरे उन इनामात को याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर हुए, जबकि मैंने तुम्हारी मदद की रूहुल खुद्दूस से। तुम गुफ्तगू करते थे लोगों के साथ पंखोड़े में से, मतलब गोद में से बच्चे थे वहां से। मैं भी और बड़ी अम, लोगों के साथ पंखोड़े में भी, और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी। और जबकि मैंने तुम्हें सिखाई किताब और हिकमत, यानी तौरात और इंजील। और जब तुम बनाते थे गारे से परिंदे की एक शक्ल मेरे हुक्म से, फिर तुम उसमें फूंक मारते थे तो वो एक उड़ने वाला परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से। और तुम अच्छा कर देते थे मादरजात अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से। और जब तुम मुर्दों को निकाल खड़ा करते थे मेरे हुक्म से। सब मौजिजात अल्लाह के हुक्म से अल्लाह करता था, ईसा अलैहिस्सलाम को सामने रखकर। जब मैंने बनी इसराइल के हाथ रोक दिए तुमसे, जबकि तुम आए उनके पास खुले मौजिजात के साथ, तो कहा उन लोगों ने जो उनसे काफिर थे, उनमें से काफिर थे, कि ये तो सरई जादू के सिवा कुछ नहीं। तुम मगर उन लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक जादू है। और जब मैंने इशारा किया हवारियों को कि ए ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर, तो इन्होंने कहा हम ईमान लाए और गवाह रहिए कि हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। ईमान ले आए वो लोग। और जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपके रब को यह कुदरत हासिल है कि हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान उतारे? कहा अल्लाह का तकवा अख्तियार करो अगर तुम ईमान रखते हो। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अ, उसमें से खाएं और हमारे दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाए और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा वो सच है, और हम उस पर गवाह बन जाए। उस पर ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह, ए हमारे रब, उतार दे हम पर एक दस्तरख्वान आसमान से जो ईद बन जाए हमारे लिए और हमारे अगलों और पिछलों के लिए, और एक निशानी हो तेरी तरफ से, और हमारे रिस्क अता फरमा, और यकीनन तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं नाजिल कर दूंगा उसको तुम पर, लेकिन फिर उसके बाद तुम में से जो कोई कुफ्र की रोश अख्तियार करेगा तो फिर उसको मैं अजाब भी वो दूंगा जो तमाम जहानों में से किसी और को नहीं दूंगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला से दस्तरखान उतारने की, तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है मैं उतार दूंगा, लेकिन इतने खुले मौजिज़ात दिखाने के बाद अगर मैं उतार दिया, उतनी बड़ी नेमत के बाद भी अगर तुम लोग कोई कुफ्र में फिर पलटेंगे वापस, तो मैं सजा भी वैसी दूंगा जो किसी और को नहीं दिया अब तक। इस तरह से अल्लाह ताला ने कहा। और जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ दोनों को माबूद बना लेना अल्लाह के सिवा। अ, हाँ, और जब अल्लाह कहेगा ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ दोनों को माबूद बना लेना अल्लाह के सिवा।
वो अर्ज करेंगे, तू पाक है मेरे लिए कैसे रवा था कि मैं वो बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने वो बात कही होती तो वो तेरे इल्म में होती। तो तू जानता है जो कुछ मेरे जी में है, और मैं नहीं जानता जो तेरे जी में है। यकीनन तमाम पोशीदा हकीकों का जानने वाला बस तू ही है। तो ईसा अलैहि सलाम ने किसी को नहीं कहा था कि मेरी इबादत करो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा मगर वही कुछ जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि बंदगी करो अल्लाह की, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। क्या कहा ईसा अलैहि सलाम ने? अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और मैं उन पर निगरान रहा जब तक उनमें मौजूद रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही निगरान था उन पर, और यकीनन तू हर चीज पर गवाह है। अब अगर तू इन्हें आजाब देगा दे दे तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू जबरदस्त है, हिकमत वाला। अल्लाह फरमाएगा, ये आज का दिन वो है जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाएगी, और उनके लिए बागात है जिनके दामन में नदियां बहती होंगी। वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गई। यही है बड़ी बड़ी कामयाबी। अल्लाह ही के लिए है आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है, सबकी बादशाही, और वो हर चीज पर कादिर है। इसके आगे और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरे निसा में, आयत नंबर 157। और बसबब उनके ये कहने के हमने कत्ल किया मसीह ईसा इब्ने मरियम को, अल्लाह के रसूल को, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया और ना ही उसे सूली दी गई। तो ईसा अलैहि सलाम को क्या किया? यहूदियों ने सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। उनको इस तरह से लगा भी कि उन्होंने चढ़ा दिया, लेकिन ना तो उन्होंने कत्ल किया ना सूली चढ़ाई, बल्कि अल्लाह ने क्या किया? ईसा अलैहि सलाम को अपने पास उठा लिया। हालांकि ना तो इन्होंने उसे कत्ल किया और ना ही उसे सूली दी, बल्कि उसकी शबिया बना दी गई उनके लिए। उसकी शबिया बना दी गई मतलब कोई और था उनकी तरह दिखता था, या फिर कोई इल्यूजन हो गया, उनको ऐसा ख्वाब आया या इल्यूजन हो गया कुछ, या कोई था शख्स भी उनकी तरह दिखता था, उसको उन्होंने लेकर चढ़ा दिया उसके ऊपर पहल, जो भी अल्लाह आलम। बल्कि उसकी शबिया बना दी गई उनके लिए, और जो लोग उसके बारे में इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं वो यकीनन शुगूक व शहबात में है। उनके पास उस जमन में कोई इल्म नहीं है सिवाय उसके के गुमान की पैरवी कर रहे हैं। और ये बात यकीनी है कि इन्होंने उसे कत्ल नहीं किया, लेकिन ये बात हक है कि उन्होंने कत्ल नहीं किया। उन्होंने कत्ल नहीं किया ईसा अलैहिस्सलाम को, ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने उसे उठा लिया अपनी तरफ, और अल्लाह ताला जबरदस्त है, कमाल हिकमत वाला। इसके आगे अल्लाह ताला और इरशाद फरमाते हैं,
और याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, मैं तस्दीक करते हुए आया हूँ उसकी जो मेरे सामने मौजूद है, तौरात की, पहले से जो है तौरात, उसकी मैं तस्दीक करता हूँ। और बशारत देता हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएंगे, मेरे बाद एक रसूल आएंगे, उनकी खुशखबरी देता हूँ। उनका नाम अहमद होगा। अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था, अहमद होगा। फिर जब वो ईसा आए उनके पास वाज़ेह निशानियों के साथ, तो इन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। अहमद होगा। फिर जब वो आए उनके पास वादे निशानियों के साथ, तो इन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ तराशे, दरा हाले दरा हाले का उसे बुलाया जा रहा हो इस्लाम की तरफ, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं करता। उसके आगे, तो यहाँ तक तो एक पार्ट हो गया कहानी का कि ईसा अलैहिस्सलाम आए, इस्लाम की दावत दी, मौजिज़े दिखाए लोगों को। इन शॉर्ट समरी में बता रहा हूँ, मौजिज़े दिखाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी। और जब यहूदियों ने उनको कत्ल करने की साजिश की तो कत्ल नहीं किया, उनको इस तरह से शुबा हुआ, अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ बुला लिया। अब लेकिन क्या हुआ, हर इंसान को मौत तो आनी है, ईसा अलैहि सलाम को अब तक मौत नहीं आई, अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। तो वापिस ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला क़यामत की एक निशानी बनाकर जमीन पर भेजेंगे। तो किस तरह से पेश आएगा वो वाकयात, वो भी हम इसी में करेंगे। तो उसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है। हम्म, हम्म, तो हदीस किस तरह से आती है। पहले तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जमाना करीब है कि ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकिम की हैसियत से नादिल होंगे। एक आदिल हाकिम मतलब इंसाफ पसंद बादशाह। आदिल हाकिम की हैसियत से नादिल होंगे। वो सुलैब को तोड़ देंगे। सुलैब मतलब ईसाइयों ने एक जब ईसा अलैहिस्सलाम चले गए तो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करने लगे और एक क्रॉस बना दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उस सुलैब को तोड़ने का मतलब वो अकीदे को तोड़ देंगे, यानी कि साफ क्लियर कर देंगे कि मैं नहीं हूँ अल्लाह का बेटा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये क्लियर कर देंगे जब आएंगे तो। सुलैब को तोड़ देंगे, सुअर को मार डालेंगे, यानी कि सुअर के गोश्त को हलाल कर लिया है ईसाइयों ने, तो उसको मार देंगे, मतलब उसको रोक देंगे पूरी तरह, वो कानून हट जाएगा सुअर का गोश्त खाना। और जजिया मौकूफ कर देंगे। जजिया यानी कि जो भी टैक्स नॉन मुस्लिम्स की तरफ से लिया जाता है वो भी हटा दिया जाएगा। उस वक्त माल की उतनी कसरत हो जाएगी कि कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। उस वक्त का एक सजदा दुनिया व मा फीहा से बढ़कर होगा, पूरी दुनिया से बढ़कर होगा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, व इन मिन अहलिल किताबी इल्मु इल्ला युमनी बिही क़ब्ल मौता व यौमल क़यामा यकून अलैहिम शहीदा। और कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो ईसा की मौत से पहले उस पर ईमान ना लाए, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होंगे। ईसा की किताब से पहले, मौत से पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब अहले किताब में से भी सब लोग क्या होगा, ईमान, हक पर ईमान ले आएंगे। इसके बाद और एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हम्म,
एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तहखीर की यानी घटाया और कभी बड़ा करके बयान फरमाया। यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि वो खजूरों के एक झुंड में है। बस जब हम शाम को आपके पास हाजिर हुए तो आपने हमसे उस बारे में मालूम कर लिया तो फरमाया तुम्हारा क्या हाल है। हमने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, आपने कभी तहखीर की। ए अल्लाह के रसूल, आपने सुबह दज्जाल का जिक्र किया और उसमें आपने कभी तहखीर की और कभी उस फितने को बढ़ाकर बयान किया। यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि वो खजूरों के एक झुंड में है। तो आपने फरमाया मैं तुम्हारे बारे में दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का ज्यादा खौफ करता हूँ। अगर वो मेरी मौजूदगी में जाहिर होगा तो तुम्हारे बचाए मैं उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरी गैर मौजूदगी में जाहिर हुआ तो हर शख्स खुद उसका से मुकाबला करने वाला होगा, और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा और निगहबान होगा। बेशक दज्जाल नौजवान, घुंघराले बालों वाला और फूली हुई आंख वाला होगा। गोया कि मैं उसे अब्दुल इज़्ज़ा बिन खतन के साथ तशबिह देता हूँ। उस तरह से थोड़ा थोड़ा दिखने में कोई था, तो उस तरह से तो उनसे तशबिह देता हूँ। बस तुम में से जो कोई उसे पाले तो चाहिए कि उस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत की तिलावत करे। बेशक उसका खुरूज शाम और इराक के दरमियान से होगा, फिर वो अपने दाएं और बाएं जानिब फिसाद बर्पा करेगा। ए अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, वो जमीन में कितना अरसा रहेगा। आपने फरमाया 40 दिन रहेगा। दज्जाल जमीन में 40 दिन रहेगा, और एक दिन साल के बराबर, और एक दिन महीने के बराबर, और एक दिन हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी आयाम तुम्हारे आम दिनों के बराबर होंगे। हमने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, वो दिन जो साल के बराबर होगा, क्या उसमें हमारे लिए एक दिन की नमाजें पढ़ना काफी होंगे। आपने फरमाया नहीं, बल्कि तुम एक साल की नमाजों का अंदाजा कर लेना। हमने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, उसकी जमीन में चलने की तेजी क्या होगी। आपने फरमाया उस बादल की तरह जिसे पीछे से हवा ढकेल रही हो। बस वो एक कौम के पास आएगा और उन्हें दावत देगा, तो वो उस पर ईमान ले आएंगे और उसकी दावत कबूल कर लेंगे। फिर वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और जमीन सब्जा उगाएगी, और उसे चरने वाले जानवर शाम के वक्त आएंगे तो उनको उनको हाँ पहले से लंबे थन पड़े बड़े और कोखें तनी हुई होंगी। फिर वो एक और कौम के पास जाएगा और उन्हें दावत देगा। वो उसके कौल को रद्द कर देंगे। अब ये तीसरी बार क्या होगा, वो लोग रद्द कर देंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे दावत उसकी। तो वो उससे वापस लौट आएंगे, बस वो कहे ज़दा हो जाएंगे, लेकिन वो कहे ज़दा हो जाएंगे। वहां उनको क्या होगा, बारिश नहीं, खेती नहीं, कुछ भी नहीं होंगी। उनके पास दिन के मालों में से कुछ भी ना रहेगा, और उसे कहेगा कि अपने खजाने को निकाल दे, तो जमीन के खजाने उसके पास आएंगे, जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदारों के पास आती हैं। फिर वो एक कड़ेल और कामिल अशबाब आदमी को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर उसके दो टुकड़े कर देगा, और दोनों टुकड़ों को अलहदा अलहदा करके एक तीर के मुसाफिर पर रख देगा। फिर वो उसको आवाज देगा तो वो जिंदा होकर चमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। दज्जाल के इसी अफ़ाल के दौरान अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम को भेजेंगे। अब क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम वापस जमीन पर आ रहे हैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए। तो किस तरह से होगा, वो दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार के पास जर्द रंग के हले पहने हुए दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। अ, हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपने सर को झुकाएंगे तो उससे खतरे गिरेंगे, और जब अपने सर को उठाएंगे तो उससे सफेद मोतियों की तरह खतरे टपकेंगे। और जो काफिर भी उनकी खुशबू सूंघेगा वो मरे बगैर रह ना सकेगा, और उनकी खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर जाएगी। बस हजरत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलब करेंगे यानी ढूंढेंगे,
उसे बाबे लूत पर पाएंगे। बाबे लूत वो एक मुकाम है इजराइल में, वहां पर पाएंगे। बाबे लूत उसे बाबे लूत पर पाएंगे तो उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो कौम आएंगी जिसे अल्लाह ने दज्जाल से महफूज रखा था। बस ईसा अलैहिस्सलाम उनके चेहरों को साफ करेंगे और उन्हें जन्नत में मिलने वाले उनके दर्जात बताएंगे। बस उसी दौरान हजरत ईसा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वही नाजिल फरमाएंगे कि तहकीक में तहकीक मैंने अपने ऐसे बंदों को निकाला है कि किसी को उनके साथ लड़ने की ताकत नहीं है। ऐसे बंदों को आजाद कर दिया कि तुम उनके साथ लड़ नहीं सकते, किसी को लड़ने की ताकत नहीं है उनसे। बस आप मेरे बंदों को हिफाजत के लिए तूर की तरफ ले जाएं और अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा। याजूज माजूज अब क्या हुआ, आजाद हो गए। याजूज माजूज को भेजेगा और वो हर ऊंचाई से निकल पड़ेंगे और उसका सारा पानी पी जाएंगे। हर ऊंचाई से निकल पड़ेंगे, उनकी अगली जमातें बहरे तबरिया पर से गुजरेंगी और उसका सारा पानी पी जाएंगी। और उनकी आखिरी जमातें गुजरेंगी तो कहेंगी कि इस जगह किसी वक्त पानी मौजूद था। और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि उनमें किसी एक के लिए बैल की सरी भी तुम में से किसी एक के लिए आजकल के 100 दीनार से अफजल व बेहतर होगी। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा। वो एक जान की मौत की तरह सब के सब एक लख्त मर जाएंगे। फिर अल्लाह ने नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जमीन की तरफ उतरेंगे। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ पहाड़ पे लेके चले गए थे, कोहे तूर पे। जब ईसा अलैहिस्सलाम आए आके कोहे तूर के पहाड़ पर लेके गए। अब याजूज माजूज आए और जब याजूज माजूज खत्म हो गए तो अब लेके वापस उतर रहे ईसा अलैहिस्सलाम उनको पहाड़ पे से। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ उनकी दुआ करेंगे, ये हमने पढ़ लिया। अम, फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जमीन की तरफ उतरेंगे तो जमीन में एक बालिश की जगह भी याजूज माजूज के अलामत और बदबू से उन्हें खाली ना मिलेगी। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला पुख्ती ऊंटों की गर्दनों के बराबर परिंदे भेजेंगे जो उन्हें उठाकर ले जाएंगे और जहां अल्लाह चाहे वो उन्हें फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश भेजेगा जिससे हर मकान, ख्वाह वो मिट्टी का हो या बालों का, आईने की तरह साफ हो जाएगा और जमीन मसल बाग या हौस के ढल जाएगी। फिर जमीन से कहा जाएगा अपने फल को उगा दे और अपनी बरकत को लौटा दे। बस इन दिनों ऐसी बरकत होगी कि एक अनार को एक पूरी जमात खाएगी और उसके छिलके में साया हासिल करेगी। और दूध में इतनी बरकत दी जाएगी कि एक दूध देने वाली गाय कबीले के लोगों के लिए काफी हो जाएंगी और एक दूध देने वाली ऊंटनी एक बड़ी जमात के लिए काफी हो जाएंगी और एक दूध देने वाली बकरी पूरे घराने के लिए किफायत कर जाएगी। इसी दौरान अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जो लोगों के बगलों के नीचे तक पहुंच जाएंगी। फिर हर मुसलमान और हर मोमिन की रूह कब्ज कर ली जाएगी। ऑब्वियसली ईसा अलैहिस्सलाम चाहे इससे पहले वफात पा जाएंगे या फिर ये टाइम पे पा जाएंगे और बद लोग ही बाकी रह जाएंगे जो गधों की तरह खुले बंदों जमा करेंगे। बस इन्हीं पर क़यामत कायम होगी। तो ये थी ओवरऑल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद,
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.